Hello guys, welcome to iTutor. Today I am coming up with interview preparation strategy, some more sample questions. We already discussed some 5 questions in last video and the general tips also, and some more 5 questions I will discuss through today's video. And also बहुत सारा कमेंट आ रही है about the cutoff. I will discuss you with once the IGNO will confirm the cutoff officially. Otherwise when I just ऐसे ही बता दिया तो आप लोग expect करेगा. So that's why one official notification आने के बाद I will share with you surely. Okay. Anyway, if you are experienced person and your merit list also good, then you prepare for the interview further. Okay. And this is common interview tips and common questions only. In case not, if you didn't get through IGNO assistant registrar and security officer examination, you can utilize these interview tips for other examinations also. Okay, so it's never be a waste of your time to prepare for an interview. Okay, if other job के लिए भी also आप लोगों को ये interview tips use कर सकते हैं and sample questions also, some of the common only, so you can utilize this. Okay, this video and these questions. So hope you are following. If you need any changes and you need any improvement, please let me know through the Gmail itutor.coms@gmail.com. Some of you already asked me about the email address. It's itutor.coms@gmail.com. Okay, you can mail me through that. I will definitely reply you, and also in comment box timely I will follow your comments, and also I will reply. Okay, so thank you for your support first, and we will start today. So in last video I discussed about your strength. Okay, last video I think the last question was about what is your strength. Okay, hope you already prepared that 5 questions in your own way. And today the first question is, as assistant registrar position, what are your weakness? आप लोगों का weakness के बारे में anyway एक question आ सकते हैं. Okay, so this question is actually a tricky question. Okay, so turn this question into strength question in disguise. Okay, it's just opposite of your strength. You can mention easily your strength as an assistant registrar post के लिए और security officer post के लिए आप लोगों का strength because positive qualities आप लोगों को mention कर सकते हैं easily. Okay, but weakness बताने में वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है. So weakness बताने के बाद क्या हो सकते हैं, because वो job के लिए आप weak है तो they don't want to allow you for that post, right? सो वहाँ पे आपका पूरा वीकनेस आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना नहीं चाहिए इन द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू. फॉर इंस्टेंस, से something like, I do not like not being challenged at work. Okay, you can answer one of that way. Otherwise you could mention a weakness that has nothing to do with the job, right? A weakness ये job position में क्या कर सकते हैं? There is no effect or there is no meaning of any weakness in this post, and that you, if any weakness is there, then you can do or you can overcome with the training, right? So training part is there, so you will overcome your weakness through that training. You can also answer like this way also. Okay, this way you end up the turning this potentially tricky question into a positive way. So ये आंसर दिया तो वहाँ पे आप लोगों का आंसर and further question also will end up, right? Otherwise you mention your weakness one by one, they will ask many more questions through that way. Okay, so you just stop that question on that time only. आप लोग वहाँ पे ही वो question को रुकना चाहिए. फर्दर वो इंटरव्यू बोर्ड कोई क्वेश्चन उसके ऊपर आपका वीकनेस के ऊपर पूछना नहीं चाहती हूँ. सो ऐसे आप लोगों को आंसर देना है यहाँ पे. ओके, एंड समटाइम्स यू मे बी आस्क्ड अबाउट सर्टेन चैलेंजेस यू फेस्ड इन योर प्रीवियस पोजीशन. ओके, सो आप लोगों का पहला करियर और द प्रीवियस जॉब में कोई चैलेंजेस आया तो उसके बारे में पूछ सकते हैं. इफ़ यू आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन, लर्न टुवर्ड्स द प्रॉब्लम दैट हैपेंड अर्ली in your career and that you were able to solve. Okay,
सो एक चैलेंज आपने पहले आपका एक्सपीरियंस में था, यू ऑलरेडी सॉल्व दैट प्रॉब्लम एंड यू विल गेट मोर एक्सपीरियंस थ्रू दैट प्रॉब्लम, ऐसे ही आंसर देना। ओके, एंड डू नॉट ट्राई टू ब्लेम अदर्स। इफ़ आप लोग ऑल ओवर द इंटरव्यू आप लोग को किसी के बारे में कंपेयर नहीं करना, एंड किसी को आप लोगों का वीकनेस के वजह से किसी को ब्लेम मत करना, ऐसे वाला गलती मत करना। ओके, इंटरव्यू के टाइम में जस्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड देन रोल यू प्लेड इन सॉल्विंग इट। ओके, आप लोग क्या किया वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और आप लोगों को एक चैलेंज आया तो आपने कैसे, अदरवाइज़ किसी के ऊपर मत डालना वो ब्लेम उसके वजह से आया है, अदरवाइज़ वो प्रॉब्लम किसी और कोवर के, अदरवाइज़ आपका कोलीग के वजह से आया है। सो ऐसे कभी नहीं बोलना इंटरव्यू बोर्ड के। ओके, एंड आप लोगों का वीकनेस बिकॉज ऑफ योर फैमिली और बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड्स, ऐसे वाला वीकनेस मेरे को मिला है, ऐसे भी नहीं बोलना, बिकॉज ये वीकनेस यू विल ट्राई टू ओवरकम। एक कॉन्फिडेंट लेवल पे आप लोगों को वीकनेस लेके आना है इन द टाइम ऑफ द इंटरव्यू इफ दे आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, होप यू इट्स क्लियर। एंड next question is, as assistant registrar position, how would you co-workers describe you? आपको co-workers आपको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? ये क्वेश्चन ऑल्सो भी है ट्रिकी क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे आप लोगों का क्वालिटीज़ आपको बताना है। एक्चुअली द क्वेश्चन सच as this one are asked with the aim of getting you to discuss some of your qualities, perhaps hidden, that you won't have mentioned if you were not asked. ओके, सो यहाँ पे आप लोगों का एक्चुअली क्वालिटीज़ बताना है। कोई और आपका कोवर्कर आपको देख के क्या मतलब आपसे क्या मिलेगा उन लोगों को, कोई इंस्पिरेशन लाइक दैट, आपका क्वालिटीज़। सो टीम वर्क, यू कैन मेंशन देयर टीम वर्क एक्चुअली। ओके, वेल माय कोलीग्स, ओके दिस इज अ सैम्पल आंसर ओनली। वेल माय कोलीग्स विल टेल you they can count on me. They will tell you that I am a team player and someone they enjoy working with. ओके, सो आप लोगों के साथ एक टीम प्लेयर के जैसे, या यू आर द टीम लीडर, सो आपके अंडर वो लोग काम करना चाहते हो। ओके, ऐसे वो दे विल कोवर्कर विल मेंशन यू अबाउट आफ्टर सम मंथ्स और सम ईयर्स। ओके, ऐसे आप लोगों को आंसर दे सकते हैं यहाँ पे। And next question is, think of a good decision you made and recent decision that was not good. What did you do differentially in making these decisions? Okay, so आप लोगों आपने पहले जो डिसीजन ले लिया उन लोगों का वो डिसीजंस का कंपेयर करना है यहाँ पे। ओके, मे बी दे विल गिव यू टू सिचुएशंस, सो आप लोगों को वहाँ पे डिसीजन का वो क्या क्या डिसीजन लेगा वो आप टू सिचुएशन में, एंड क्या होगा आपका डिफरेंस क्या होगा वो डिसीजन पे। सो योर आंसर शुड बी फोकस्ड ऑन हाउ वेल यू can review relevant facts, consider various options and select the most appropriate option. Okay, so discuss how you factor in variables such as constraints and resources. So situations different होगा, right? So maybe आपने एक good decision ले लिया, उसके बारे में उसके next time some other problems आया, so you take some other decisions. So the situations and the problem, nature of problem and resources are different in two different times, right? And also time also different. Okay, so 5 years के बिफोर आपने एक डिसीजन ले लिया वो नहीं हो सकते आफ्टर 5 years, राइट? सो आप लोगों को टाइम के जैसे एंड नेचर ऑफ प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम के बारे में सोचना पड़ेगा, एंड हाउ इट विल अफेक्ट ऑन द टाइमली, एंड कंसिडर वेरियस फैक्टर्स आप लोगों को यहाँ पे कंसिडर करना होगा टू टाइम का टू डिसीजन लेने के टाइम में, अदरवाइज टू प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम में। ओके, दैट्स ऑल्सो इन डिफरेंट टाइम्स। सो ऐसे आप लोगों को दो प्रॉब्लम आया, दो नेचर का प्रॉब्लम आया, तो आप ऐसे ही डिफ्रेंशिएट कर लेना। ओके, सो वन आपको बताना चाहिए रिसोर्स के बारे में, एंड उन लोगों का वो प्रॉब्लम का कंस्ट्रेंट के बारे में, एंड द प्रॉब्लम का नेचर के बारे में आप लोगों को वहाँ पे मेंशन करना होगा। ओके, एंड टाइम के बारे में। इतना 4 चीज़ें आप लोग वहाँ पे बता देना कंपेयर करके। ओके, सो डिफरेंट पूछ लिया तो। एंड when next question is, when delegating a recent duty, please describe how you showed your confidence in the person's ability to do the job.
Okay, here discuss your method of assigning responsibility to the best candidate. So आप you are an assistant registrar, आप आपका कोई colleagues को आप एक responsibility दे रही है. So वो responsibility कैसे आप दे देगा, कैसे क्या क्या दे के आप देगा. When delegating recent duty, please describe how you showed your confidence in the पर्सन एबिलिटी. एक आपका कोवर्कर का एबिलिटी आप देखते होगा, राइट. सो वो असाइनमेंट्स कौन सा पर्सन को एक्ट करते हैं और कौन सा कैंडिडेट को बेस्ट रिस्पॉन्सिबल दे विल डिस्कस एंड दे विल असाइन. सो वो देखना पड़ेगा. ओके, एंड हाउ यू कम्युनिकेट विद द एम्प्लॉय टू मेक द अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ दम एंड हाउ यू मेक श्योर दैट एम्प्लॉय हैव द resources need to carry out specific task. As an assistant registrar, you are forwarding a file to a coworker. Okay, so वो फाइल के नेचर के हिसाब से वो कोवर्कर का एबिलिटी भी आप देखते होगा. सो इंडिविजुअल हैव डिफरेंट एबिलिटीज़ एंड डिफरेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट होगा, एक जैसे नहीं हो सकते हैं. सो वो वर्क के नेचर के जैसे आपको उन लोगों को एनालाइज करना है, आपका कोवर्कर को किसको देना है ये टास्क और को हु विल डू द बेस्ट. सो वहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा. ओके, सो वहाँ पे द एनालाइज इज द बेस्ट थिंग. ओके, आप लोगों का कोवर्कर को पहले एनालाइज करना है. सो दैट वे यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन एंड प्रिपेयर दैट क्वेश्चन. यू शुड ऑल्सो चिप इन योर फॉलो अप प्रोसीजर्स. सो आप लोगों को एक कॉन्फिडेंट होगा, आप लोगों को एक एनालिस होगा. यू आर इन वन ऑफिस, राइट. सो इफ यू आर एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट, you are already worked with some companies or some other post, so all of you know the nature of office, right. so वो कैसे एक ड्यूटी किसी को असाइन करके देते हैं based on their quality, based on their education, everything इट्स डिपेंड्स, राइट. सो पहले आप लोगों का कोलीग्स के बारे में आपको पढ़ाई करना होगा एज ए असिस्टेंट रजिस्ट्रार और इन द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल. ओके, सो ये सब वहाँ पे आप कंसिडर कर लेना ये इंटरव्यू क्वेश्चन पे आप आंसर देने के टाइम में. ओके, आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट. And today's session, the last question is, why do you want to work for us as assistant registrar position? So आप लोग ये चूज़ करने का क्या रीज़न है, आप लोग असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पोजीशन क्या क्यों चूज़ किया है. एक्चुअली बेसिकली दैट इज़ द क्वेश्चन यहाँ पे. ओके, हियर they just want to know how motivated you are about the position or if you are just there for the पे. ओके, सो यहाँ पे आप उन लोगों को एक्चुअली इंटरव्यू बोर्ड को ये पता करना है आप जस्ट सैलरी स्केल देख के आया है या और कुछ मोटिवेशन है. एज एन असिस्टेंट रजिस्ट्रार और इन द इग्नो दैट इज़ इन एजुकेशन फील्ड यू आर वर्किंग एज एन असिस्टेंट रजिस्ट्रार. सम एनी अदर मोटिवेशन फॉर द सोसाइटी और फॉर द एजुकेशन सेक्टर आप लोगों को कोई है पैशन. अदरवाइज आप जस्ट सैलरी स्केल देख के आया है. ये उन लोगों को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है. That's why they are asked this question. So they want to ascertain that you would form an important part of the company. You have to show them that you are willing to be part of the company and would do all you can to ensure you and the company grow together. So आप लोगों को जैसे आंसर देना है वो इग्नो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पोस्ट में आप आया तो वो इग्नो एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यू विल डू योर बेस्ट फॉर दैट ग्रोथ ऑफ दैट एजुकेशन सेक्टर, राइट. ऐसे आप लोगों को आंसर देना है. सो आप लोग वो इग्नो के यू नो अप एंड डाउन्स में आप लोग साथ होगा एंड ऑल्सो यू विल यूज़ योर यू नो एबिलिटीज़ एंड योर पोटेंशियल फॉर द मैक्सिमम पोटेंशियल फॉर द पोस्ट. सो यू जस्ट आंसर एंड प्रिपेयर ऐसे वाला आंसर देने के लिए ट्राई कर लेना. ओके, यू कैन ऑल्सो ट्राई टू शो दम alignment between their needs and yours. Okay, and what all things you can discuss in this positive way. Talk about the things you like about the fame. Okay, इग्नो का कौन सा चीज़ आपको पसंद आया वो या ये क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेना. दिस कैन ओनली बी पॉसिबल इफ़ यू हैव डन योर होमवर्क बिफोर द इंटरव्यू. ओके, सो मैंने पहले स्टार्टिंग से ही आप मैं बता रही हूँ इग्नो के बारे में पढ़ाई कर लेना. देन ओनली यू कैन मेंशन समथिंग अबाउट द इग्नो एंड देयर ग्रोथ एंड द स्टार्टिंग टाइम कैसे
कैसे था इग्नो का एजुकेशन एंड अभी कैसे है इग्नो. नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड इग्नो का presence are there. Okay, it's a huge distance education institution IGNOU is, so you can mention that here. And be complimentary. People enjoy compliments but just don't overdo it. Okay, neutrally you can compliment about the IGNOU and their good things. Okay, and emphasize your strength and how they align with the position and company. And आपका strength पहले ही आप identify कर लेना as a position for the assistant registrar. वो strength के साथ आप लोगों को कैसे इग्नो का डेवलपमेंट में सपोर्ट कर सकते हैं वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर लेना. ओके, एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू डोंट मेंशन इन दिस टाइम. ओके, डोंट गिव द इम्प्रेशन दैट यू आर देयर बिकॉज यू नीड मनी. ओके, कभी भी मत बताना मैं सैलरी स्केल देख के आया है, बिकॉज द फर्स्ट टाइम ओनली दे विल जज यू एज यू आर जस्ट मनी माइंडेड. ओके, विदाउट सैलरी you won't do any social work there. So you just don't mention that, and don't give the impression that you may be gone in a couple of months. Okay, so कभी भी आप लोगों का आंसर से उन लोगों को लगना नहीं चाहिए you are just for temporary post. आप लोगों को और गुड जॉब मिलने के टाइम में you will left for this job, so they won't entertain you further. Okay, so ऐसे भी नहीं करना है. And as much as you want to sell yourself in a good light, do not make the mistakes of exaggerating your current position. अब अभी वाला आपका जॉब वाट एवर द गुड जॉब यू एग्जैजरेट मत करना. ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार के और अच्छे जॉब है नाउ आई एम डूइंग, ऐसे ऐसे नहीं बताना. ओके, and add some of your routine tasks to make it realistic, and don't neglect things like paperwork. Okay, so paperwork के आपका strength के बारे में only हमेशा बात कर लेना, and also for the growth of the IGNOU. Okay, remember that only, and try to be in the interviewer's shoes as you answer this question. Okay, a job you have been doing for years should be part of your already, and such as you must know all the tasks you undertake, and try to show them that you plan well before you begin work and after you attain your goals. Your review the process to see how you could be more efficient. Okay, सो यहाँ पे आप एक छोटा सा रिव्यू दे देना आपके बारे में. वो रिव्यू से क्या होना चाहिए, उन लोगों को लिखना चाहिए यू आर एप्ट फॉर दिस पोजीशन. ओके, सो दैट्स वाई दिस क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू विल आस्क व्हाई डू यू वांट टू हियर एंड व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर एज एन असिस्टेंट रजिस्ट्रार और सिक्योरिटी ऑफिसर. ओके, ये सब पूछ सकते हैं आप लोगों के साथ. सो बी प्रिपेयर विथ दिस टिप्स फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, एंड दिस इज़ अबाउट टुडेज वीडियो. इफ यू हैव एनी doubts you can comment it on comment box, otherwise you can mail me. And if you need more clarity also, if in this any questions in last video also, today's video also, you आप लोगों को more clarity चाहिए तो आप बता सकते हैं. I will explain you, and hope you follow this, and please subscribe our channel and share it to others also, and thank you. If you like the video, please like it and subscribe and support us. Thank you.